کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب آنکھیں آخری بار بند ہوتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا روح بس اڑ جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی سفر شروع ہوتا ہے؟ آج کی یہ داستان اس سفر کی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات سے لے کر برزخ کے انتظار تک، رات جب زمین کے نیچے پہلی بار اندھیرا ہوتا ہے، جب منکر اور نکیر سوال کرتے ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کی روح کو جھکجھوڑ دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہم اپنے اس سفر کے لیے کتنے تیار ہیں۔ کہتے ہیں جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رگوں میں آگ دوڑ گئی ہو، آنکھیں اوپر کی طرف ٹھہر جاتی ہیں اور زبان پر صرف ایک نام رہ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑا ہوتا ہے جو آسمان سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی طرف نکل جو تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے محبت کرتا ہے۔ روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی کے سراہی سے بوند گر جائے، چہرے پر سکون اتر آتا ہے اور مہک ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ روح گناہوں میں ڈوبی ہو تو فرشتوں کے ہاتھوں میں کالے کپڑے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر سختی اور للکار ہوتی ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں، اے نافرمان روح، نکل اپنے جسم سے اس رب کی طرف جس نے تجھ سے ناراضگی کا اعلان کیا، اور پھر روح کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں میں لپٹا کپڑا پھنس کر نکلے۔ آنکھیں پھیل جاتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے، اور گھر والوں کو بس اتنا سمجھ آتا ہے کہ اب روح لوٹنے والی نہیں۔ اس وقت انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے شخص کو اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے، اگر نیک ہے تو جنت کی جھلک اور اگر گنہگار ہے تو جہنم کی آگ کا منظر۔ موت کوئی آواز نہیں کرتی، وہ بس ایک پل میں انسان سے دنیا چھین لیتی ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف ایک ٹھنڈی لاش ہوتی ہے۔ وقت آسمان پر لکھا جاتا ہے، فلاں بندہ اب دنیا سے چلا گیا، اور دھرتی پر ایک نئی تحریر شروع ہوتی ہے، قبر کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ جسم کو دھویا گیا ٹھنڈے پانی سے جیسے رب ارجعونی۔ دنیا کی ہر گرمی اس سے چھین لی گئی۔ غسل دینے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے یہ عمل آخری عزت ہے جو ایک بندہ اپنے بھائی کو دے سکتا ہے۔ غسل کے بعد جسم کو سفید کفن میں لپیٹا گیا، وہ کفن جو کسی امیر یا غریب میں فرق نہیں کرتا، نہ کوئی نام، نہ کوئی پہچان، بس 3 ٹکڑے کپڑے اور خاموش سکون۔ گھر والے چاروں طرف بیٹھے تھے، کسی کی سسکیاں دب رہی تھیں، کسی کی آواز گم تھی۔ ایک بچے نے باپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اب وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا، اور اس کے لبوں پر صرف ایک سوال تھا، ابا آپ کہاں چلے گئے؟ باہر گلی میں جنازے کی تیاری ہو رہی تھی، لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، کچھ چپ تھے، کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ فرشتے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ انسان کو اس کی مٹی کی طرف لوٹایا جا رہا ہے جس سے وہ بنایا گیا تھا۔ جب جنازہ اٹھا تو ایسا لگا جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو، ہر قدم پر لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح اوپر سے ہے، وہ جانتی ہے کہ اب اس کا جسم اسے الوداع کہہ رہا ہے، مگر بول نہیں سکتی، بس محسوس کرتی ہے۔ قبر پہلے سے کھودی جا چکی تھی، مٹی کی ٹھنڈک، 4 دیواریں اور اوپر کھلا آسمان۔ جب جنازہ نیچے اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے تیری اصل زندگی شروع ہوگی۔ جیسے ہی مٹی کا پہلا مٹھا ڈالا گیا، روح کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، اب وہ بالکل تنہا تھی، بالکل اکیلی۔
हर मुट्ठी मिट्टी के साथ रिश्ते, यादें और दुनिया की तमाम चीजें ऊपर रह गईं। आखिरी मुट्ठी डालकर लोग पलटे, मगर जमीन के नीचे अब एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। ऊपर से कोई देख नहीं सकता था, मगर नीचे की खामोशी में आवाजें गूंज रही होती हैं। कौन है तेरा रब, क्या है तेरा दीन? और वहीं से शुरू होती है कब्र की पहली रात, जहां रोशनी या तो रूह की दोस्त बनती है या अंधेरा उसकी सजा। वो कब्र जो बाहर से बस एक गड्ढा नजर आती है, असल में वो बरज़ख की दहलीज है, जहां से इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। रूह अपने जिस्म के पास आती है। फरिश्ते कहते हैं, अब जाग, तेरा हिसाब शुरू होने वाला है। कब्र की दीवारें सन्नाटे में डूबी हैं। कोई रोशनी नहीं, बस गहराई और मिट्टी की ठंडक। एक अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो कानों से नहीं, दिल से सुनाई देती है। पहली बार इंसान को एहसास होता है कि वो अब वाकई तन्हा है। ना कोई माँ की दुआ, ना दोस्तों की बातें, ना माल, ना दुनिया, बस वो और उसके आमाल। अचानक मिट्टी हिलती है और दो नूरानी मखलूकात उतरती हैं, मुनकर और नकीर। उनके चेहरों की हैबत बयान से बाहर है। उनकी आवाज़ें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी हैं। उनका सवाल ऐसा जो ज़मीन को हिला देता है, रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा तक़ूलु हाज़र रजुल, इस शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? अगर वो मोमिन है तो उसका दिल रोशनी से भर जाता है। वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी नूरानी चमक होती है कि दुनिया की निगाहें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। वो रूह अब आराम से रहती है। फरिश्ते उसके पास बैठते हैं और वो बरज़ख की नींद सो जाती है। मगर अगर वो गुनाहगार या मुनाफिक है तो जवाब जुबान पर नहीं आता। सवाल बार बार दोहराया जाता है और वो कांपता है, रोता है, मगर बोल नहीं पाता। फरिश्ते चीखते हैं, तू झूठा था, तेरे दिल में ईमान नहीं था। फिर ज़मीन अपने अंदर से सख्ती करती है। कब्र उसके सीने को यूं दबाती है कि पसलियां आपस में मिल जाती हैं। हर तरफ अंधेरा, हर लम्हा अजाब, न कोई आवाज़, न कोई रहम। वो चीखना चाहता है, मगर अब आवाज़ नहीं निकलती। मगर आवाज़ सिर्फ फरिश्ते सुनते हैं। दुनिया में उसके अपने सिर्फ यही कहते हैं, उसकी मग़फ़िरत हो। मगर अब वो सब दूर जा चुके होते हैं। कब्र की वो पहली रात जहां वक्त रुक जाता है, जहां हकीकत सामने खड़ी होती है, जहां कोई झूठ नहीं चलता और जहां इंसान पहली बार जानता है कि कब्र जिंदगी का आखिरी घर नहीं, बल्कि असल घर की दहलीज है। उनकी हैबत बयान से बाहर थी। चेहरे पर सख्ती, आंखों में बिजली की चमक और आवाज़ें गड़गड़ाहट जैसी। एक ने कहा, मैं मुनकर हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नकीर हूँ। वो दोनों रूह के करीब आए और ज़मीन कांप उठी। फरिश्तों ने ज़ोरदार आवाज़ में पुकारा, ए इंसान, अब जवाब दे, क्योंकि ये सवाल तुझसे हर हाल में पूछा जाएगा। पहला सवाल, मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है? अगर वो रूह मोमिन होती है तो उसके लबों पर मुस्कान आ जाती है। वो बिना किसी डर के कहती है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे मौत दी और अब वही मुझे जिंदा करेगा। ये सुनकर फरिश्ते सर झुका लेते हैं। और फरिश्ते कहते हैं, सही कहा तूने, तू सच्चा बंदा था। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है, माँ दीनों का, यानी तेरा दीन क्या है? रूह सुकून से जवाब देती है, दीने अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वही दीन जो अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के जरिए दुनिया को दिया। फिर तीसरा सवाल होता है, माँ ताकुलो फी हाज़ा रजुल, यानी जो शख्स तेरे पास भेजा गया था उसके बारे में तू क्या कहता है? मोमिन रूह जवाब देती है, फरिश्ते कहते हैं, सो जा ए पाक रूह, जन्नत की हवाएं तुझे सलाम कहती हैं। फिर जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खुलता है, जहां से रोशनी और ठंडी हवा उसकी कब्र में भर जाती है। कब्र चौड़ी हो जाती है और एक नूरानी आवाज़ आती है, सो जा, जैसे दुल्हन अपने घर में सुकून से सोती है।
मगर अगर रूह गुनहगार होती है तो जब फरिश्ते सवाल करते हैं उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। वो घबरा कर कहती है, हाँ हाँ, मैं नहीं जानता। मुनकर और नकीर फिर सवाल दोहराते हैं, लेकिन जवाब वही रहता है। तब फरिश्तों की आवाज गरजती है, तू दुनिया में झूठा था, तुमने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया, अब झूठ का अंजाम देखो। फिर जमीन उसे दबाने लगती है, कब्र तंग हो जाती है, पसलियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, हर तरफ डर और अंधेरे का माहौल छा जाता है। वो रोती है, चीखती है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उस वक्त कब्र की तरफ जहन्नम का दरवाजा खुलता है, जहां से बदबूदार हवा और आग की लपटें कब्र के अंदर दाखिल होती हैं। रूह कांप उठती है और वो समझ जाती है कि ये नींद नहीं बल्कि अजाब का सफर शुरू हो चुका है। अगर रूह मोमिन होती है तो फरिश्ते उसके पास बैठते हैं। फरिश्तों के हाथों में नूर की मशालें होती हैं और कब्र की दीवारें दूर हट जाती हैं और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खुल जाता है। वहां से एक ठंडी हवा आती है जो उसके चेहरे को छू जाती है और एक खुशबू फैल जाती है जो कब्र की सारी मिट्टी को महका देती है। फिर एक नूरानी आवाज आती है, सो जा ए पाक रूह, जैसे एक दुल्हन अपने ससुराल के घर में सुकून की नींद सोती है। कब्र उसके लिए जन्नत का एक वाक बन जाती है, रोशनी हर तरफ फैल जाती है। उस वक्त उसके आमाल उसके साथ बैठते हैं, एक नूरानी शक्ल में, और कहते हैं, डर मत, मैं तेरे अच्छे आमाल हूँ। तू दुनिया में अच्छे आमाल करता था, सच बोलता था, दूसरों पर रहम करता था। वो रूह अब चैन से सो जाती है, फरिश्ते उसके पास रहते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और काफिर के लिए जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा होता है, गुनहगार के लिए एक अजाब होता है। जैसे ही फरिश्ते सवालात करने के बाद लौटते हैं, कब्र उसके चेहरे की तरफ से तंग हो जाती है, दीवारें उसके सीने पर गिर जाती हैं, पसलियां आपस में मिल जाती हैं। अचानक उसके सामने एक साया आता है, काला, बदबूदार और डरावना। मैं तेरा गुनाह हूँ, तेरी झूठी जुबान, तेरी नफ्स की हसरतें। फिर एक दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खुलता है, वहां से आग की लपटें आती हैं। कभी कभी आग उसके नीचे से गुजरती है, वहां से गंदी बदबू आती है और उसके सीने पर सांप और बिच्छू हमला करते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वो सुनाता जो तुम सुनते हो तो तुम कब्र में जाने की दुआ मांगते। रूह चीखती है। दोस्तों, आप लोग कब्र में किस तरह रहना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, उसकी कब्र रोशन हो और उसका सवाब आपको भी मिले। क़यामत में हम हर नेकी के लिए तरसेंगे, तो अभी वक्त है नेकी कमाने का। अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए आप अपनी कब्र कैसे तैयार कराना चाहोगे, रोशन नूरानी या तंग और सख्त अजाब। अगर कोई मुसलमान ये वीडियो देख रहा है तो इसे सदका समझकर शेयर करे। जज़ाकल्लाह।